रिंकू ने अपने हिसाब से सिचुएशन हैंडल की, मुनारा ने अपने हिसाब से। Correct. मुनावर is a competitor of course, but in a positive way. Yeah, he's a good nice competitor. good He's a good competitor. Yes, I feel कि दोनों husband wife हर किसी के पास पहुंच जाते हैं जब भी कुछ Yeah. होता है, अपने तो issue So, solve करो। absolutely foolish, absolutely crybaby, and super immature. She has a And fun the faces element. that she makes. She has a fun element. I like when she's funny. अक्कल नहीं है लेकिन बोलेगी दादियों की तरह हर इंसिडेंट में। Yeah. अभिषेक अच्छा बच्चा है, And I think Abhishek is very genuine. अच्छा बच्चा बट अग्रेसिव है। हाँ, मैं भी एज अ मदर लाइक ये लोग लड़ते हैं ना, ऐश्वर्या जैसे बिहेव करती है नील के साथ, बड़ा बुरा लगता है। Yeah, we feel bad कि मतलब गेम अच्छा शो के लिए लगता आप अपने हस्बैंड गेम की शो के लिए इतना गिर जाओगे। and the way Vicky talks, I mean, I would never want my husband to talk like this ever with me. Hello and welcome to Bollywood Spy, Anita ma'am and Janvi ji. कैसे हैं आप लोग? हम बहुत ठीक अच्छे हैं। हैं. Thank you so much for getting us on Thank you. Bollywood Spy. Thank you, you yes. so much. You're most welcome. Firstly, to begin with, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है रिंकू जी का गेम? मस्त मस्त मस्त. I'm proud. Yeah. I'm proud of her. So yeah, She is what she is. yeah, I'm very happy कि Yeah. वो जबरदस्ती दिखने के लिए she's not Yeah. fighting, she's not being aggressive या दूसरों के problems में बोल नहीं रही है कि because उसका वो फंडा ही नहीं है कि मुझे दिखना है and I should be visible everywhere so I should get everywhere. She's her real self. She's absolutely organic. Because she's not playing a character. Yeah, she's her real self. She completely. is playing Rinku. Yes. And Big Boss, as far as we believe, is a reality show. Yeah. ऐसा होता है कि माँ और बहन जितने अच्छे से जानते हैं उतने अच्छे से कोई जानता नहीं है, क्योंकि घर में देखा होता है इतनी ही सुलझी हुई है रिंकू जी, बिल्कुल। इतनी ही वेल स्पोकन, आर्टिकुलेटेड, Yes. इतनी ही Yes. स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हमेशा से। Yeah. She Yes, is like that. she This is is her like this. personality. So she speaks very well to everyone. In Yes. fact, even in our family, She's loved I by the think, entire family, from yeah. the bacha to the yeah, booda. and matlab not only like immediate families, but also extended families की उनके भी आगे जो सास ससुर ये वो, तो वो सबके साथ रिश्ते बनाकर रखती है। Yes. मतलब from my grandparents relations till date आगे जितने भी उनके होंगे grandchildren and whatever, उन सबके साथ रिंकू has her relations. So she's loved by everyone. She's a fun-loving person, and she talks very nicely to everyone. वो किसी को unnecessarily criticize नहीं करती या she doesn't put them down, and she'll never judge people. मतलब अगर कोई कुछ कर भी रहा होगा तो अगर हम बोलते हैं ना यार इसने ऐसा किया, तो बोलती so what यार, उसकी लाइफ है, उसको करने दो. I mean whatever, however they want to live. So she's always like live and let live type of a person. बिल्कुल। जलब होने टाइम लगता है क्या? Yeah, she has a reserve side to it. She's a an very introvert. private person also. Very private person. तो because friends वो बहुत easily नहीं बनाती और वो बहुत ज़्यादा friends बनाती भी नहीं है. She has few friends but close friends who stand through thick and thin because वो खुद भी वैसी है. So इसीलिए she takes a little time to open up. She will gauge how people are, कौन कैसा है, and then she sees कि अच्छा उसका where she'll be compatible with and with whom she can gel with, and then that's how she builds a relation. कल ही हमने देखा कि किस तरह उन्होंने मनारा को she just gave it back, काफी सही तरीके से, सटीक तरीके से उन्होंने समझाया। She is like that. और साथ ही में वो वीडियोस और वो क्लिप्स अब वायरल हो रहे हैं। Okay. जिस तरह वो जा रही है बहुत सही जा रही है, ये दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए मनारा और उनकी वो कॉन्वर्सेशन को लेकर? क्या कहना चाहिए? I think रिंकू ने मनारा को नॉमिनेट करने के बाद उससे बहुत प्यार से भी बात की थी. In fact, she was feeling a little bad because she nominated her, but obviously as a contestant she has to give 2 names for nomination, और उसको उस वक्त जो सही लगा उसने बोला. उसको दिल से अच्छा नहीं लगा होगा that she is giving her उसके रूम टीममेट का उसने नाम दिया है, but then again it is no choice, it's a game, आपको देना ही होगा. यही अगर कल मान लीजिए रिंकू ने मनारा का नाम नहीं लिया होता और मनारा ने रिंकू का लिया होता, तब भी रिंकू का ऐसा रिएक्शन नहीं होता जो मनारा का था, because she also knows कि as a contestant वो जो कर रही है वो उसको करना ही है. At one point of time उसे भी करना पड़ेगा. And I think age and So experience. so I think Manara is very immature with her age and she's very kiddish, तो इसलिए उसका reaction भी वैसा रहा. And throughout the day, उतना सा बात करने के बाद भी रिंकू and जिग्ना जी, let it go attitude रखा था.
लेकिन ओवरडोज एक लूप में चलता है तो कहीं आपको एक फर्मली बोलना पड़ता है, जो कि वो रूम में मनारा इतना बोल रही थी कि देन फाइनली रिंकू हैड टू पुट हर से कि यू नो लाइक यू आर ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सो नाउ आई एम टेलिंग यू मुझे 2 नॉमिनेशंस देने थे, दोज वर माय नॉमिनेशंस, और मुझे जो रीजन देना था बिकॉज बिग बॉस आस्क्ड, आई गेव द रीजन। आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। सो इफ यू कैन नॉट टेक द नॉमिनेशन इन द राइट स्पिरिट, देन आई कैन नॉट हेल्प इट। सो आई थिंक दैट इज रियलिटी, दैट इज द फैक्ट। ट्रू। अनीता मैम आप कुछ कह रहे थे? I एक्सपीरियंस said age and experience speaks. She's, I think, 24, 25, Manara, and Rinku Rinku is of double course the age. 45 plus, and experience. So I think it matters. Yeah. It matters. And then people have come from different cultures, different places, different personalities. So situational वो wise, दोनों ने, or हाँ। somebody handles a situation. Rinku ने अपने हिसाब से situation handle की, Manara ने अपने हिसाब से. Correct. I think they just behaved exactly as per their age and experience. Yeah, so it's okay. It's a game. Yeah. बिल्कुल। अगर बात करें रिंकू जी की और जिग्ना जी की दोस्ती की, तो आपको कितनी सच्ची लग रही है और कितना आपको जेन्युइन लग रहा है दोनों का? Genuine है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स जस्ट फ्रॉम रिंकू साइड और लाइक दैट, बट फ्रॉम जिग्ना Either way. But I think they both are very very genuine. जो very, दिख रहा है genuine हाँ, दिख रहा बहुत है. जेन्युइन दिख रहा है, और मुझे नहीं लगता उन दोनों ने दोस्ती गेम में किसी एक दूसरे game को के लिए, सपोर्ट करने के लिए हाँ. की है, या किसी फोकस से की है कि अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो कुछ होगा। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो एक दूसरे के साथ नहीं उन लोगों के साथ दिखते जो ऑलरेडी झगड़ा करके दिख रहे हैं। सो दे बोथ आर ऑन द बैक सीट सिटिंग विथ ईच अदर बिकॉज दे आर वेरी सेंसिबल। उनको नहीं लगता कि लड़ाई झगड़े करके हमें दिखना है। दे हैंडल देयर सिचुएशंस इन अ वेरी मैच्योर्ड मैनर। So I think they are the most, like, 2 people in the house who are super matured as per their age, and they are exactly behaving for what they are. True that. और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि रिंकू जी और जिग्ना जी दोनों का जो तालमेल है वो एक साथ में बैठ भी इसीलिए गया क्योंकि दोनों ही एक एज ग्रुप दोनों का हाँ, similar है, could be. could be. और दोनों की थिंकिंग भी कहीं ना कहीं Correct, absolutely. See, differences होते हैं, आप माँ बेटी हो, बहनें हो, कोई भी हो, because कहीं ना कहीं आपके अपने thoughts होते हैं, opinions होते हैं, तो यहाँ भी होगा, but then basic thing is you need to understand one another. Basic nature एक दूसरे का समझना चाहिए Correct. कि ये एमी मुझे डांट रही है या एमी मुझे गिरा रही है कि no, there is a reason for that. Correct. So like in Rinku So and that understanding, that trust should be there in any relationship. so like in Rinku and Jigna's relation, one The thing trust is is for there, sure, I think. yeah, कि अगर देखो कल को ऐसी situation भी आएगी when they both will have to Yeah. stand against each other. Exactly. Because ultimately they are competitors. Okay, but I am sure कि उनका relation इतना genuine and organic है कि any nomination or any such thing is not going to impact their bond. Yeah. जो आपको as a player करना है वो तो आपको करना ही है, लेकिन they will not take it on their personal grudge or personal ego or कि तभी आप सही थे और अभी आप ऐसे करो। I'm sure they'll take it into the right spirit. बिल्कुल। दोस्ती की तो चलिए बात हो गई, लेकिन किससे बचकर रहना चाहिए रिंकू जी को? जितना आप गेम देख रहे हो, जितना आपने फॉलो भी किया होगा और जितनी करीबी से आप देख रहे होगे और जिस माइंडसेट से आप देख रहे होगे, शायद और ऑडियंस नहीं देख पा रही होगी क्योंकि यू आर फैमिली अल्टीमेटली। आपको पता है कि कौन हानिकारक है और कौन मुझे लगता है अंकिता एंड विकी से बचना चाहिए। Very strongly I feel that. Yeah, I feel that because like अंकिता easily बात नहीं करती. She only tries to cover up with people जो उसकी सुनेंगे, and Vicky tries to get into everybody's books. तो He's playing a game, I think. He's actually playing a game. वो तो पूरा दिखता है, इसलिए he's scattered. Everywhere. वो रायते की तरह फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अगर वो क्या करेगा, he would want to keep himself into everybody's books. Like a simple example, उसने मुनावर के साथ भी अच्छा बना के रखा, लेकिन जब नॉमिनेशन का टाइम आया तो सबसे पहले उसने मुनावर का नाम लिया, नील का क्यों नहीं लिया, जबकि उसको मालूम था कि नील और ऐश्वर्या के साथ प्रॉब्लम्स हो रही है। But because that was an outside understanding and settlement, so they had no choice and they aimed at Munawar. So I think Rinku should really be very careful from Vicky and this, because वो purely game खेल रहा है। So Munawar is a competitor, of course, but in a positive way. yeah, he's a good competitor. He's a good competitor. Yes. As far as I know, Rinku already knows Ankita and Vicky from outside. No, not really. No, not really. No. And eventually they got inside the house. That could be seen.
No, no, no. No. So it is more like कि आप Rinku's cousin and Ankita and Vicky are friends because they stay in the same complex. So basically, Ashita and Ankita and Vicky are friends. I think Ashita and Ankita have been a part of one dance show, Yeah. and also since they live in the same vicinity or something. Rinku knows Ankita as one of the actor who's done Yeah. Pavitra Rishta, but उन्होंने on screen भी कभी share नहीं किया है No, they are कोई not भी family. space. They are not friends. So they are not friends. मतलब they are practically they got to know each other. उनको इतना पता होगा कि हाँ, कि भाई we are from Ashita the- is the common medium between both of them कि ये अशिता की sister है और ये अशिता की friend है. हाँ, But बस directly they nothing. don't know each No, other. nothing. मतलब वैसा है. They don't know each other at all. बिल्कुल, लेकिन ये बात काफी ज्यादा चौंका देने वाली है कि अंकिता और विकी से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। अंकिता जो है रिश्तों को बहुत ज्यादा मायने देती है और रिश्तों को बहुत तवज्जो देती है। जहाँ तक अभी तक देखा है उन्होंने हमेशा, चाहे कल वो मनारा के पास चली गई कि क्या हुआ, मेरा बच्चा, मेरा ये, वो उसको जबरदस्ती हक कर रही है उसके ऊपर बैठ वो रिश्ते दैट डजंट मीन वो अच्छे रिश्ते शेयर कर रही है। आई फील कि दोनों हस्बैंड वाइफ हर किसी के पास पहुंच जाते हैं जब भी कुछ Yeah. होता है। अपने तो इशू सॉल्व करो। करेक्ट। बेसिकली अंकिता को सबसे ज्यादा विक्की अपने साथ चाहिए था, बट विक्की को क्योंकि गेम खेलनी है तो उसके लिए अंकिता भी मायने नहीं रखती इन द गेम शो। एंड एज फार एज अंकिता जो ब्लैबर करती रहती है कि मेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, तो उसने कौन से रिश्ते वहां रखे हैं? अगर कोई रो रहा है और अगर अंकिता को खाना बनाना नहीं आता या वो कोई और काम नहीं कर रही या विक्की के साथ भी वो कहीं दिख नहीं रही है, तो उसे कुछ तो करना है। तो फिर वो यही करेगी कि जो रोएगा उसके पास जाके उसको पैसिफाई करेगी। रिश्ते तो तब बनेंगे जब एक्चुअल में दिखेंगे कि कौन, जिन लोगों के साथ रिश्ते बनाए हैं उन लोगों ने भी अंकिता को नॉमिनेट किया है। उसने ईशा के साथ रिश्ता बनाया था, तो ईशा ने कौन सा उसके साथ रिश्ता निभाया, मुझे बताओ। सो देन इट इज ऑल अबाउट द गेम। ऐश्वर्या है, उन्होंने बोला न्यू पहले भी एक हाँ, दूसरे को जानते थे, बट ऐश्वर्या खुद बोलती है कि आई कैन नॉट स्टैंडर्ड। तो क्या रिश्ते बनाए हैं मुझे बताइए? जिसका रिश्ता अपने पति के साथ सही नहीं लग रहा स्क्रीन के ऊपर, तो बाकी रिश्ते तो दूर की बात है। बिल्कुल। मनारा का बिहेवियर कैसा लगता है मैम आप लोगों को? very kiddish, very childish, Yeah. very irritating sometimes. Yeah, I think she's behaving much younger than what Isha is. Absolutely foolish, absolutely crybaby, and super immature. She has a and fun the faces element. that she makes. She has a fun element. I like when she's funny, but उसको अगर बस एक चीज बोल दो कि आप यहाँ